In order to get hot quality leads every single day, we need to take care of these 5 things. नंबर 1, मार्केट पोजीशनिंग। जब भी आप मार्केट में जाते हैं तो मार्केटिंग पोजीशनिंग बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाली है। चाहे आप बिगिनर हैं, चाहे आप एक पुराने ऑनलाइन मार्केट में हो चुके हैं, तो आपको एक मार्केटिंग पोजीशनिंग होनी बेहद ज्यादा जरूरी है। आई विल like explain you in detail these 5 steps in the next slide. Okay, so second stage is building the trust. This is a really important to get client or generate hot quality leads. And the third thing is irresistible offer. जो आप लोगों को मैं चैलेंज देने वाला हूं, ये irresistible offer उसी का पार्ट होने वाला है। तो आप लोगों को अपने लिए irresistible offer बना लिए, उसके भी मैं आपको स्टेप बताऊंगा and how you can make it. Number 4 is traffic, is Facebook ads. Number 5 is the lead generation engine. So please help me in welcoming Vivek. Vivek, welcome to Internet Moguls Thursday Masterclass. Thank you, Vivek. मैं एकदम बढ़िया. Thank you so much. I mean, this is my dream. The 3 years back, I joined your community as a student, micro video mastery. उस टाइम पर, हाँ, I remember that कि मैं सबसे ज्यादा वीडियोस बनाता था आपकी कम्युनिटी में. So it's like my dream कि जहाँ मैं स्टूडेंट था वहाँ आज मैं गेस्ट आया हूँ. Thank you so much. Awesome, guys. Please give it up for Vivek. Thank you so much. Awesome, Vivek. तो मैं अपना वीडियो बंद कर रहा हूँ. आपकी और आपके पास प्रेजेंटेशन रेडी है. It's between you and your audience. और जब आपकी प्रेजेंटेशन खत्म हो जाएगी तब मैं आऊँगा. See you. Bye for now. Okay, thank you so much. Thank you so much. First of all, thank you so much everyone for giving me your valuable time. I hope my picture and voice is everything is clear. Please let me know in the comment section is all clear, so we can start the conversation ahead. So please let me know all clear. Thank you so much. Thank you so much. मुझे idea लग गया कि everything is all clear. So guys, let's start. So I want to share the presentation right now. Just give me a second. Okay, great. I hope सभी लोगों को presentation बिल्कुल ही clear है. So first of all, before starting this conversation, I want to promise you the content I'm going to give you, this is really powerful and that can blow up your mind, because the things I'm going to share with you, this everything I learned from my practice. I put it my blood, sweat, tears in this particular information that I'm going to give you shortly. Okay guys, so absolutely मैंने 5 years अपने इस चीजों को दिए हैं समझने के लिए, because everything I know I'm going to share you right now. And because I started from the Internet Mogul there is a small program, micro video mastery. Then I joined second program as well, entrepreneurship. It's all about entrepreneurship. कुछ ऐसा program था. So वहां से बहुत ही सारी चीजें सीखी, बहुत सारी मैं चीजें देखी, मेहनत की रही. So I was dream at that time कि यार भाई कुछ बड़ा तो करना ही होगा, ऐसे तो काम नहीं चलेगा. So I found the power of videos कि videos ना यार गेम कर सकती हैं. बिकॉज एक लाइन मैंने सुनी थी अभी सर के मुंह से कि वीडियोस आपके सेल्समैन है. सो इतनी वीडियोस बनाई मैंने, इतनी वीडियोस बनाई. सो उसके बिहाफ पे मैंने एक यूट्यूब चैनल ग्रो किया, इंस्टाग्राम ग्रो किया. टुडे आई हैव नाउ 25,000 फॉलोअर्स ऑन इंस्टाग्राम एज वेल एज ऑन दी यूट्यूब चैनल. तो ओवरऑल इंटरनेट के ऊपर मैं 25,000 में अपना एक ऑडियंस बिल्ड कर पाया बिकॉज ऑफ ओनली द पावर ऑफ वीडियोस. सो टुडे आई वांट टू शेयर यू दी हाउ टू get hot leads every single day who are ready to pay you. When I started my business, तो हम Facebook पे एड्स रन करते थे और people say I am not interested, I don't want to buy your product, even I didn't fill your form. इस तरीके के जवाब मेरे सामने आते थे. तो I was thinking कि यार गलती कहाँ पर हो रही है यार, गलती कहाँ पर हो रही है. आई ऑलवेज आस्क दिस क्वेश्चन कि गलती कहाँ कर रहा हूँ, गलती कहाँ कर रहा हूँ. ये क्यूरियोसिटी के साथ जो एक्सरसाइज अभी सर ने स्टार्टिंग में करवाई, वो मेडिटेशन, दिस इज रियली पावरफुल बिकॉज वो यूनिवर्स को आप एक मैसेज भेज रहे हैं. और अल्टीमेटली ये जो क्वेश्चन है ये भी उस यूनिवर्स से मैं हमेशा पूछता था कि गलती कहाँ कर रहा हूँ, गलती कहाँ कर रहा हूँ. सो दिस उस एक सवाल ने मुझे इतने बड़े लेवल पर लीड जनरेशन और साइकोलॉजी को समझाने में हेल्प करी. दैट आई एम गोइंग टू शेयर यू राइट नाउ. ओके, सो लेट्स मूव. Give me a second. Give me a second. There is a technical issue. Okay. Again, मैं display share करता हूँ. Give me a second. Now it's okay.
Okay. So now, today I want to give you the exact roadmap that I made after 5 years of my trial and error. जो भी struggles रहे, जो भी चीजें रही, उन सब में जो चीजें मैंने जानी. Because some people will say, आप ये कीजिए, आप वो कीजिए, आप फनल्स बनाइए, आप फेसबुक ऐड रन कीजिए, आप सेल्स कीजिए, आप ये कीजिए, वो कीजिए, लैंडिंग पेज बनाइए, ईमेल मार्केटिंग कीजिए. सम पीपल विल से दिस. और मुझे एक चीज समझ में आ गई थी, आपको हर एक चीज के कॉम्बिनेशन की जरूरत है. You need a synchronization of every single thing that is everybody is talking on the internet. तो आपको हर एक चीज को कॉम्बिनेशन में और पूरा सिंक्रोनाइजेशन में इंप्लीमेंट करने की जरूरत है. So that I learned in my 5 years. Okay, and that I'm going to share you. It will open up all the floodgate of hot leads every single day. Now you don't need to worry about where to get my next client. Now you can get client on demand anytime, anywhere you want. This is the power you have in your hand after watching this entire presentation. I applied this strategy with multiple clients in the past with insane results. और एवरी सिंगल टाइम जब भी क्लाइंट को इसको अप्लाई करता है, इवन वो बिल्कुल ही न्यू क्लाइंट है फ्रॉम स्क्रैच, उससे भी सेम रिजल्ट आते हैं. बिकॉज द सिस्टम एंड द प्रोसेसेस आई मेड, दैट इज रियली पावरफुल, दैट इज रिजल्ट ड्रिवन एंड वैल्यू एडिंग प्रोसेसेस. ओके, द स्ट्रेटजी ऑल्सो हैज मच इवॉल्व देन लास्ट टाइम. बहुत इंप्रूव हो चुकी है पहले से ज्यादा. बट बिफोर टॉकिंग अबाउट अ सिंगल वर्ड, लेट मी शेयर सम केस स्टडीज जो कि मैंने खुद जनरेट की अपनी मेहनत से. अ पर्सन, मिलन बहल, अगर आप जानते हैं पेरेंटिंग कोच को, परीक्षित जोबनपुत्रा, उनके ये बिजनेस पार्टनर हैं. पैंडेमिक के बाद इनका बिजनेस बिल्कुल ही लिटरली डाउन चला गया. सो इन्होंने एवरी सॉल्यूशन इंटरनेट के ऊपर अपनाया, बट स्टिल उन्हें कुछ नहीं रिजल्ट्स आए. बट आई हेल्प हिम विद माई services, with my technology and psychological system that I'm going to share you. Okay, उसके बाद चेतन, he's a PCOS expert. इन्होंने भी every single solution अपना इंटरनेट के ऊपर अपनाया, but still एक भी रिजल्ट नहीं आए. और फर्स्ट 10 days के अंदर ही 4 high ticket clients. I'm talking about 4 high ticket clients. Number 3, गौरव, he is a insurance advisor. इन्होंने चंडीगढ़ की सबसे बेस्ट एजेंसी SEO डिस्कवरी, उनसे सर्विसेज ली. अगेन रिजल्ट्स नहीं है, बट हम लोगों ने उनको हेल्प करी. अगेन दीपक बजाज, ही इज माय वन ऑफ माय गुड फ्रेंड. दीपक बजाज को आई थिंक बहुत सारे लोग जानते भी होंगे, उनके 10 लाख सब्सक्राइबर्स हैं यूट्यूब पर. इज अ नेटवर्क मार्केटिंग कोच, उनकी भी हेल्प करी. केवल किशन, बिजनेस ऑटोमेशन कोच, ये भी मेरे बहुत अच्छे फ्रेंड है, इनके साथ भी मेरा कोलैबोरेशन हुआ, उनकी भी बहुत हेल्प करी उनकी लीड जनरेट करने में. सो जो चीजें मैं आपको बता रहा हूँ, इट्स ऑलरेडी टेस्टेड एंड प्रूवन विद लॉट्स ऑफ कोचेस एंड कंसल्टेंट एज वेल एज एंटरप्रेन्योर इन द पास्ट. इस पूरे सिस्टम के थ्रू आई पर्सनली मेड माय 6 फिगर ऑनलाइन बिजनेस इन वेरी लिमिटेड टाइम, और बहुत ही जल्दी मैं 7 फिगर बिजनेस को टच करने वाला हूं. एंड इसके साथ ही मैंने 6 फिगर बिजनेस में बहुत सारे ऑनलाइन अर्निंग, नॉट बहुत सारे बोलूंगा, 4 to 5 6 फिगर ऑनलाइन अर्नर जनरेट भी किए. कुछ लोग ऐसे थे जो कि 16 से 17 साल के भी थे, वो भी बिजनेस कोचेस बने, अफिलिएट मार्केटिंग कोचेस बने. कुछ ऐसे थे जो कि 45 ईयर 50 ईयर के भी थे, वो भी थे. So let me tell you about myself. अब आप लोग सोच रहे हैं कि इतना कुछ बता रहा है, इतने promises कर रहा है. I know this is the bold promise I am making you right now. But इससे पहले मैं अपने बारे में थोड़ा सा बताना चाहूंगा. Guys, मेरा नाम है विवेक शर्मा, और I don't want to say I am an expert or I am an online guru. No यार, I am a simple person like you, जो कि एक छोटे से शहर से है. I live in हरियाणा, एक छोटी सी जगह से, बट सपने बहुत बड़े हैं. चाहते हैं कि जिंदगी में कुछ अचीव करें, चाहते हैं जिंदगी में लोगों की लाइफ को ट्रांसफॉर्म करें, इंस्पायर करें. बिकॉज आई स्ट्रांगली बिलीव दैट वी ऑल ह्यूमन कैन ट्रांसफॉर्म एंड इंस्पायर एवरी सिंगल पर्सन ऑन दिस अर्थ. बिकॉज दिस इज द टाइम एंड दिस इज द रियल टाइम वी कैन एड वैल्यू इन दी अदर्स पीपल. बिकॉज डिजिटल मार्केटिंग ने इतना ज्यादा अपने को फ्रीडम दिया है, इतना ज्यादा आई मीन कह सकते हैं हम लोग, एक ऐसी चाबी दे दी है जिसके थ्रू हम बहुत सारे लोगों तक रीच कर सकते हैं. सो वो मेरा एक मिशन है. मैं चाहता हूं कि मैं मिलकर सभी लोगों के साथ इस दुनिया को इस एक अच्छा प्लेस बना सकें, टू लिव अ बेटर प्लेस टू लिव फॉर एवरी सिंगल पर्सन. ओके, सो दिस इज माय होल स्टोरी दैट आई वांट टू शेयर. बट मैंने अपनी जर्नी को स्टार्ट किया एज अ नेटवर्क मार्केटर, बट नेटवर्क मार्केटिंग में मैंने इतनी कोई अर्निंग नहीं करी. 35,000 रुपीज अर्न किए जस्ट इन 2 ईयर्स. उस 2 ईयर्स के स्ट्रगल ने मुझे वो इंसान बना दिया जो कि इंसान मैं हूं.
आई लर्न द कम्युनिकेशन स्किल्स, आई लर्न द कॉन्फिडेंस, हाउ टू टॉक विद पीपल. सो उस जर्नी में बहुत सारी चीजें सीखी. उसके बाद आई स्टार्टेड माई डिजिटल मार्केटिंग करियर. सो काफी सारी चीजें सीखी, यूट्यूब से सीखी, अभी सर से सीखी, और भी कुछ कोर्सेज किए मेंटोर से, और जस्ट काम किया. एंड आई फाउंड वन थिंग कि काम करते जाओ, काम करते जाओ, काम करते जाओ. जो इस प्लेटफॉर्म पे आने का मुझे मौका मिला, ये मैंने कभी सोचा भी नहीं, सीरियसली कभी नहीं सोचा था यार. बिकॉज एक टाइम पे मैं भी ऐसे वेबिनार सुना करता था, और एक टाइम पे तो आई मीन बस यही था कि यार पता नहीं कुछ कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे. बस एक ही चीज सिंपल में समझ में आई, आप काम करते रहो, शायद भगवान आपको रास्ते दिखाता है, और भगवान है भी. बट मैं पहले इन चीजों पे विश्वास नहीं करता था, बट अभी करता हूं. यू कैन कॉल इट यूनिवर्स, यू कैन कॉल इट नेचर, बट काम करती हैं चीजें. ओके, नाउ लेट्स क्विकली जंप ऑन द मेन कंटेंट. In order to get hot quality leads every single day, we need to take care these 5 things. नंबर 1, मार्केट पोजीशनिंग. जब भी आप मार्केट में जाते हैं तो मार्केटिंग पोजीशनिंग बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाली है. चाहे आप बिगिनर हैं, चाहे आप एक पुराने ऑनलाइन मार्केट में हो चुके हैं, तो आपको एक मार्केटिंग पोजीशनिंग होनी बेहद ज्यादा जरूरी है. आई विल like explain you in detail these 5 steps in the next slide. Okay, so second stage is building the trust. This is a really important to get client or generate hot quality leads. Then the third thing is irresistible offer. जो आप लोगों को मैं चैलेंज देने वाला हूं, ये irresistible offer उसी का पार्ट होने वाला है. तो आप लोगों को अपने लिए irresistible offer बना लिए, उसके भी मैं आपको स्टेप बताऊंगा and how you can make it. Number 4 is traffic, is Facebook ads. Number 5 is the lead generation engine. बस इसका नाम चेंज कर दिया है, लीड जनरेशन इंजन. इट इज सेल्स फनल, वेरी सिंपल. ओके, सो एक जो चीज है, जो पर्सनली फॉर्मूला मैंने बनाया, टेक्नोलॉजी प्लस साइकोलॉजी इज इक्वल टू हॉट लीड्स और क्लाइंट. सम पीपल विल से कि फनल्स बना लेते हैं काम चल जाएगा. सम पीपल विल से कि ईमेल मार्केटिंग सीख जाएंगे काम चल जाएगा. नहीं यार, आपको साइकोलॉजी भी सीखनी पड़ेगी. द बिगेस्ट मिस्टेक पीपल डू, पीपल वांट फैंसी एंड कूल डिजाइन्स फनल, जो कि वेबसाइट बहुत अच्छी बन जाए, लोगो बहुत अच्छे बन जाए, ठीक है, वो मैटर करता है. बट द मेन थिंग इज दैट कि साइकोलॉजी, लोगों की प्रॉब्लम समझनी, वहां से लीड्स क्वालिटी की आती है. नंबर 2 थिंग इज पीपल वांट लेटेस्ट हैक, कि उनको ना नई चीज चाहिए कि बस अभी मिल जाए और कल लीड आनी शुरू हो जाए. गाइस, ऐसा नहीं होता यार. एंड द थर्ड थिंग इज पीपल ऑलवेज अट्रैक्ट ऑन शाइनी थिंग्स, कि मार्केट में क्या चल रहा है, आज ये वाला चीज कर लेते हैं, आज वो वाली चीज करते हैं. नहीं, आपको एक ही पे टिक कर एक ही काम करना होता है. उस पर लगातार लगे रहिए, एटलीस्ट 90 डेज, एटलीस्ट 180 डेज एक ही स्ट्रेटेजी पे लगातार लगे रहिए जब तक सक्सेसफुल ना हो, नेक्स्ट पे मत जाइए. सो ये मिस्टेक्स लोग कर रहे हैं, और ये मैंने खुद भी करी यार. लोग क्या कर रहे हैं, मैं खुद भी करता था. सो वी नीड टू आस्क आई मीन वन सिंगल क्वेश्चन, जो कि हर एक इंसान को पूछना चाहिए, जो मैं खुद से भी पूछता हूं और आज भी पूछता हूं. व्हाई पीपल बाय, व्हाई पीपल बाय. अगर इस एक क्वेश्चन का आंसर आपको मिल गया ना, तो हॉट क्वालिटी लीड्स, क्लाइंट्स ये लाने इतने ज्यादा आसान हो जाएंगे, इतने ज्यादा आसान हो जाएंगे, क्योंकि आपको पता है कि इंसान के दिमाग में क्या चल रहा है, उसको क्या चीज बतानी है, व्हाट दे आर एग्जैक्टली स्टार्विंग फॉर. ये सिंगल क्वेश्चन हमें जानना बेहद ज्यादा जरूरी है. एंड हाउ पीपल बाय, अंडरस्टैंड द ह्यूमन साइकोलॉजी एंड द कोर प्रिंसिपल ऑफ मार्केटिंग एंड सेल्स. ये समझने बेहद ज्यादा जरूरी है. व्हाई पीपल बाय, इसको समझते हैं. When people want to solve a problem. Number 2, or people want to gain the pleasure. यहां पर डॉक्टर के पास क्यों जाते हैं? बिकॉज दवाई लेनी है, बिकॉज वी वांट टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम. डॉक्टर को पैसा इसलिए नहीं देते कि वो डॉक्टर है, डॉक्टर को पैसा इसलिए देते हैं क्योंकि वो हमारी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है, वो बीमारी ठीक करेगा. नंबर 2, गेन दी प्लेजर. प्लेजर क्या? अच्छी गाड़ी, अच्छे कपड़े, ये हमें प्लेजर देते हैं, अच्छा फील करवाते हैं. दैट्स व्हाई वी बाय दिस काइंड ऑफ थिंग्स. तो प्रॉब्लम एंड प्लेजर, इसके अंडरस्टैंडिंग को मैंने बड़े टाइम पहले समझा था. और डीपली चलते हैं थोड़ा सा. बट सम पीपल थिंक कि यार मैं तो प्रॉब्लम ऑलरेडी सोल्व कर रहा हूं. व्हाई पीपल डोंट बाय अगेन? व्हाई? द आंसर इज रिलेटिबिलिटी एंड कनेक्टिविटी. लोग आपके साथ रिलेटेबल फील नहीं कर पा रहे, कनेक्टेबल फील नहीं कर पा रहे. और वो क्यों नहीं फील कर पा रहे? आगे चलते हैं. कनेक्ट विद रूल नंबर 1. जो 5 थिंग्स मैंने बताई थी उसको थोड़ा डिटेल में जानते हैं. मार्केट पोजीशनिंग, इसे हम नीश भी बोलते हैं, और बहुत जगह पर इसे बोला जाता है टारगेट ऑडियंस या बायर पर्सोना. नाम कुछ भी हो, आपका बायर कौन है ये जानना बेहद ज्यादा जरूरी है अगर आप हॉट क्वालिटी की लीड जनरेट करना चाहते हैं. अगर आप यही नहीं जान पाएंगे मेरा बायर कौन है, तो आप मार्केटिंग किसको करेंगे यार? आप एड्स किसकी रन करेंगे?
It is not possible to show the ads to the right people and become your leads or your customer. It is not possible जब तक आप अपने like buyer persona को नहीं समझेंगे. So this is rule number 1. आप मार्केट पे पोजीशनिंग कैसे करते हैं? जब आप अपनी मार्केट नीश को समझ लेते हैं तो देन उसके अकॉर्डिंगली आप कंटेंट बनाते हैं, उसी के अकॉर्डिंगली आप वेबसाइट बनाते हैं, उसी के अकॉर्डिंगली सब कुछ चलता है और आप पोजीशन हो जाते हैं बिकॉज लोग आपको जानते हैं. ही इज द एक्सपर्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर मार्केट, ही इज द एक्सपर्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर नीश, ही इज द एक्सपर्ट ऑफ पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल. देन हमारी वहां पर पोजीशनिंग हो जाती है. एंड इज दिस इनफ टू गेट लीड्स? नो. Connect the rule number 2, trust, giving them value. If I conclude the entire market in the word, I conclude with these 3 words, and that is value based marketing. I would like to repeat again, value based marketing. So एक market larger formula है जिसको मैं डिस्कस करना चाहूंगा. Only 3% people will टेक एक्शन ऑन योर ऑफर इमीडिएटली, बिकॉज वो 3% लोग इमीडिएट बाइंग मोड के अंदर हैं, बाकी के लोग नहीं हैं. और जब आप उनको वैल्यू देते हैं, वैल्यू इट कुड बी वेबिनार, इट कुड बी 1-to-1 कॉल, इट कुड बी वर्कशॉप, कोई भी, इट कुड बी वीडियो सीरीज. वैल्यू जब आप अपनी ऑडियंस को एडुकेट करते हैं, अब जब आप अपनी ऑडियंस को गाइड करते हैं, तब आपकी ऑडियंस आपके ऊपर ट्रस्ट करना शुरू कर देती है. एंड द सेकंड थिंग इज दैट, जो मार्केट लार्जर मार्केट फॉर्मूला के बारे में बात कर रहा था, तो 3% लोग हैं वो इमीडिएटली बाय कर देंगे, बाकी के 90% लोग हैं जब आप उनको वैल्यू देना शुरू करते हैं तो वो ऑटोमेटिकली बाइंग मोड के अंदर आना स्टार्ट कर देते हैं. तो इट विल टेक टाइम, इट विल टेक सम हार्ड वर्क, बट एब्सोल्युटली कंसिस्टेंसी के साथ काम करेंगे, इतने इंसेन रिजल्ट्स आते हैं, इतने इंसेन रिजल्ट आते हैं. अभी रिसेंटली मुझे एक क्लाइंट मिला, हाई टिकट क्लाइंट. सो उसमें क्या हुआ, 2 ऐसे लोग जो बात कर रहे थे मेरे बारे में, केवल किशन और एक और विनोद के पंडित उनका नाम है लिंक्डइन पर, मेरे बारे में बात कर रहे थे. उन्होंने मुझे बताया बात करने के बाद कि मुझे फनल्स की जरूरत है. तो केवल किशन ने बोला ओके विवेक से बनवा लीजिए. तो विनोद जी ने भी बोला कि मैं विवेक के बारे में ऑलरेडी जानता हूं. तो विनोद जी ने आगे मुझे बताया कि वी वर टॉकिंग अबाउट यू. और मुझे बड़ी खुशी मिली कि वाह यार, ये कैसे हो सकता है यार, एक बंदा गुड़गांव में रहता है, एक बंदा बेंगलोर में रहता है, एंड दे वर टॉकिंग अबाउट विवेक. एंड हाउ इट इज पॉसिबल? बिकॉज एडिंग वैल्यू. उनके साथ कभी कॉल हुई होगी, उनको कभी सर्विसेज दी होंगी 2 साल पहले, 1 साल पहले. अगेन दे कम बैक टू मी एंड दे ऑल्सो रिकमेंडेड टू द 2 more client as well by adding value and consistency. And is this enough? Absolutely no. तो then क्या चाहिए? ऑफर. एक ऐसी ऑफर जो कि इररेजिस्टिबल हो, जिसके लिए लोग ना आपको ऑब्जेक्शंस ना करें. आई डोंट वांट टू बाय योर प्रोडक्ट इज कॉस्टली. ऐसी ऑब्जेक्शंस आपकी नहीं होनी चाहिए. किल द ऑब्जेक्शन इन एडवांस बाय मेकिंग द इररेजिस्टिबल ऑफर. एंड वो हम कैसे बनाएंगे, वो हम एंड की स्लाइड में जानने वाले हैं. दैट यू कैन मेक इट. ओके. And making the offer is enough? No. Again एक और चीज चाहिए. वो क्या है? ट्रैफिक. So basically ट्रैफिक is क्या? Facebook ads और Google ads और YouTube ads, कोई भी ट्रैफिक सोर्स. But we basically use Facebook ads. Facebook ads is really powerful यार, really powerful. हाँ, अभी कुछ ISO 14 की वजह से कुछ चेंजेस आया, बट इट्स ओके विद दैट. उसको भी हम पॉजिटिवली चेंजेस ले रहे हैं. तो कुछ एक टूल मैं आप लोगों को रिकमेंड करना चाहूंगा जो कि आपको फेसबुक एड्स में बहुत ही ज्यादा हेल्प करेंगे आपकी फेसबुक एड को रन करने में. नंबर 1 टूल, फेसबुक एड्स लाइब्रेरी. ये टूल आपको हेल्प करेगा आपके कॉम्पिटिटर को जानने में. व्हाट काइंड ऑफ कॉपी दे आर यूजिंग, व्हाट काइंड ऑफ वीडियो दे आर यूजिंग, व्हाट काइंड ऑफ ऑफर दे आर यूजिंग इन देयर बिजनेस, सो दैट यू विल गेट सम आइडिया to generate your copy, your videos and your offer. That tool is absolutely free of cost from Facebook ads. Facebook ads library. Okay. So number 2 thing I want to share with you about the traffic. So पास में मैं कुछ एड्स रन करता था, कुछ टाइम के बाद उनकी ना कॉस्टिंग बढ़ जाती थी और आई वाज थिंकिंग ऐसा हो क्यों रहा है यार, ऐसा हो क्यों रहा है. सो कुछ चीजें रिसर्च करी, कुछ एक्सपर्ट से बात करी, कुछ मेरे दोस्त हैं उनसे भी बात करी, तो कुछ एक कंक्लूजन के ऊपर निकले, एंड दैट इज एड्स डाइवर्सिफिकेशन.
कभी भी हम जो ट्रैफिक की एड रन करते हैं फेसबुक पर, तो उसको ना एक ही वे में मत रन कीजिए, मल्टीपल टेस्टिंग कीजिए, मल्टीपल वीडियोस, मल्टीपल एड कॉपीज, मल्टीपल इंटरेस्ट, मल्टीपल टारगेटिंग, उनको टारगेट कीजिए, हमेशा उनको टारगेट कीजिए। इससे क्या होगा, 5 आपके लूजिंग कैंपेन में से एक विनिंग कैंपेन आपको मिल जाएगा, और जब आप एक विनिंग कैंपेन मिलता है तो आप उसको डुप्लीकेट करके उसको आप स्केलेबल कर सकते हैं। तो दिस इज द रियली पावरफुल थिंग, जो कि रिसेंटली मैंने 3 महीने में पहले ही जानी। हालांकि 3 साल से मैं फेसबुक एड रन कर रहा हूं, बट ये न्यू चीज अभी मुझे समझ में आई है आफ्टर आईओसिन 14 चेंजेस के बाद। तो ट्रैफिक में ये चीज जरूर अप्लाई कीजिए। तो चौथी चीज चाहिए ट्रैफिक, एंड एब्सोल्युटली आपको टेस्टिंग फेसबुक एड के साथ करती रहनी चाहिए, क्योंकि फेसबुक एड इज ऑल अबाउट टेस्टिंग। अब बात करते हैं, इज दिस इनफ टू गेट हाई क्वालिटी लीड्स एंड हॉट लीड्स? नो। अब बोलेंगे भाई चाहिए क्या? आखिरी चीज है वो 5वीं। अब बात करते हैं लीड जनरेशन इंजन। अब सब लोगों ने अपने अपने नाम रखे, मैंने भी रख दिया लीड जनरेशन इंजन। इट इज नथिंग, इट इज सेल फनल एंड लैंडिंग पेजेस। ओके, जस्ट इसको इंप्रेसिव बनाने के लिए अपनी ऑफर में इसका नाम मैंने लीड जनरेशन इंजन रख दिया। अब फनल्स होते क्या है? फनल्स इज लाइक filters to reach your potential audience, to reach the potential audience who is your real buyers. And funnels is a series of steps that help us to sell pin to plane with very minimum budget and very limited time. This is the funnel. ओके, तो जिस भी लोगों के साथ हम बात कर रहे हैं, जो भी लोग वेबिनार में आते हैं, वो क्वालिफाइड हो जाते हैं यूजिंग फनल, और हम सही लोगों के साथ ही बातचीत कर रहे होते हैं। और 1-to-1 कॉल में भी हम लोग इसी तरीके से बात कर रहे होते हैं कि फनल के थ्रू ही हम उन्हें फिल्टर कर रहे होते हैं। बिकॉज फनल के टॉप ऑफ द वे में हम सबसे पहले अवेयरनेस देते हैं। वो मैं आपको बताऊंगा। अवेयरनेस एक फॉर्मूला होता है, अवेयरनेस, इंटरेस्ट, डिजायर एंड एक्शन, AIDA, आइडा फॉर्मूला। तो वो बताते हैं कि फर्स्ट फनल के प्रोसेस में अवेयरनेस आती है अबाउट यू, फिर सेकंड लेवल पे कुछ लोग फिल्टर होते हैं, उनको इंटरेस्ट आता है आपके बारे में, थर्ड लेवल पर आपके बारे में डिजायर आता है, और फोर्थ लेवल पे वो एक्शन बन जाता है, देन वो आपके कस्टमर बन जाते हैं। एंड दिस इज द सिंपल वे दैट आई कॉल लीड जनरेशन एंजल। इसे हम फनल भी बोलते हैं, लैंडिंग पेजेस भी बोलते हैं, कुछ लोग वेबसाइट भी बोल देते हैं। सो सबने अपने अपने नाम रखे, तो आई जस्ट पुट इट दिस नेम, लीड जनरेशन एंजल। ओके, सो गाइस, फाइनली these are the 5 things you need to master. बट मास्टरी में टाइम लगता है ऑब्वियसली, बट आप स्टार्ट कर दीजिए। बिकॉज मैंने देखा स्टार्ट करते करते भी रिजल्ट्स ही आने लगते हैं। बिकॉज द एक्शन यू टेक, द रिजल्ट यू गेट। द सिंपल फॉर्मूला आई यूज इन माई लाइफ, न्यूटन का फॉर्मूला, जितनी फोर्स से बॉल दीवार पे मारेंगे उतनी फोर्स से वो वापस आएगी। वेरी सिंपल, जितनी स्पीड से जितने ज्यादा एक्शन लिए उतने रिजल्ट हमें जल्दी और स्पीड में आने लग जाएंगे। वेरी सिंपल, दैट फॉर्मूला आई अप्लाई इन माई लाइफ। Okay guys, so this is simple 5 things I follow in my system. So this is from all about this presentation. Okay, so आप लोगों के कोई भी सवाल है, so please let me know. और अभिजीत आर्या सर, प्लीज कैसे सवाल पूछने हैं इन दी 1-to-1 और इन दी चैट बॉक्स, प्लीज हेल्प मी टू दिस। थैंक यू सो मच गाइस। और आप लोगों को जो एक्शन प्लान है वो भी मैं आपको आई थिंक क्वेश्चन के बाद ही मैं दूंगा। सो प्लीज अपने क्वेश्चंस भी आप लोग अपने रख सकते हैं, जो भी आपके कुछ डाउट हो मुझसे रिलेटेड, इस प्रेजेंटेशन से रिलेटेड, जो भी आपको अच्छा लगा। एंड आई होप कि आप लोगों की लाइफ में एक मैसिव वैल्यू में ऐड कर पाया। थैंक यू सो मच एवरीवन। Thank you, Vivek. Guys, can we please give a big thank you to Vivek? थैंक यू सो मच। Okay. So Vivek, आपका शायद वीडियो बंद हो गया। हाँ. हाँ, So guys, questions. How many people have questions? You can just ask your questions to Vivek right now. ओके, लेट मी चेक दी द मेरे पास आ गए हैं questions मेरे पास। Okay. So Facebook पे फेसबुक ग्रुप इंटरनेट मोगल्स ऑफ द वर्ल्ड एंड लर्न सोशल मीडिया पे रेडी रहिएगा आप, बिकॉज वहां हम आपसे पूछने वाले हैं व्हाट वाज योर बिगेस्ट लर्निंग। एंड तो पहला क्वेश्चन वी हैव गॉट फ्रॉम चेत्रा रवि। चेत्रा, यू वांट टू स्विच ऑन योर वीडियो एंड कम लाइव प्लीज।
Chaitra, would you like to okay, जब तक चैत्रा आ रही है तब तक गाइस, जब मेरे को आपको एक छोटा सा बताना है कि जब भी आप कोई क्वेश्चन पूछे ना, उसको इतना एक यू शुड आस्क अ वेरी स्पेसिफिक क्वेश्चन. जैसे फेसबुक एड स्ट्रेटेजी अगर आप पूछ रहे हैं तो फेसबुक एड स्ट्रेटेजी तो बहुत बड़ी चीज है कि फेसबुक एड स्ट्रेटेजी क्या पूछ रहे हैं आप, एग्जैक्ट सवाल कहाँ फंसे हैं आप, कौन सी चीज नहीं हो पा रही. हाउ कैन आई रन फेसबुक एड्स टू गेट मोर लीड्स टू सेल मोर टी शर्ट्स. इस तरीके का आप सवाल पूछेंगे तो अच्छा रिजल्ट आपको आंसर मिलेगा. फेसबुक एड स्ट्रेटेजी तो बहुत ही बड़ा सवाल है, इसका तो कोई जवाब हो भी नहीं सकता. थोड़ा सा आपको इसको डिटेल में पूछना पड़ेगा. ओके, राजेश जी आप भी अपना वीडियो ऑन कर दीजिए प्लीज. श्रीनिवासन जी प्लीज अपना यू कैन पुट ऑन योर वीडियो. रश्मि प्लीज पुट ऑन योर वीडियो. स्नेहल प्लीज पुट ऑन योर वीडियो. सो मैं जिन लोगों को आमंत्रित कर रहा हूं, जिन लोगों को मैं इनवाइट कर रहा हूं, ओनली दोस पीपल प्लीज पुट ऑन द वीडियोस. आप सबका वीडियो नहीं ऑन होगा. देयर आर फ्यू पीपल whose videos will be on and one by one they can ask their questions. Okay, Chaitra, over to you. Good evening, sir. Thank you. Thanks for the so valuable presentation. Sir, I just wanted to know like whether I can go in an organic form, like without going with the ads. If at all I'm planning to go in an organic form, how could I have a like quality leads as such? So what is the strategy for having a quality leads when I'm planning only for the organic one? Okay, thank you so much. So first of all, I would like to ask a single question. Who is your exactly buyer? Who is your buyer persona? Student, entrepreneurs? So I can recommend you the platform first of all, then I will give you the strategy. Okay, so actually I'm a health and wellness sector. I'm in a health and wellness sector. I'm a nutritionist and a wellness coach. So I'm concentrating on women of 35 years plus for weight loss and some hormonal problems. Okay, so obviously you can use Facebook and Instagram for the organic. So in these days, I am seeing that reels are going really viral. So you can use reels every single day. You can put 2 reels, but make sure you choose the viral topic. You should see some influencer in your market and look at the how kind of content they are putting on their Instagram as well as on the Facebook. Just observe them and find out what kind of topic they are using in order to go viral. So you can use this kind of, and the second thing is the profile optimization is really important. Go to your Instagram, hit on the edit profile button. Okay, then hit on the profile button, then you can choose the you can change your image, and obviously your image should be in a professional way, and there should be a round circle on your image. So, and the third thing is that you should edit your bio as well, so people can understand what do you do exactly. So you can use this kind of marketing message helping women for weight loss in just 90 days using Ayurveda technique and some ancient techniques. So this kind of marketing message you can put. And second thing, you can put the reels. Reel will bring you the new traffic, and the profile will help you to nurture this traffic, and people will automatically come to your inbox and they will become your leads. Okay, I hope you got the point. Yes, thank you so much. Thank you, Chaitra. Chaitra, I hope you're doing well. Yes, sir. Like I'm trying my best. Awesome, nice to see you. Mr. Srinivasan. I'm unable to switch on my video. Is it all right? Because I don't know why it said host has stopped. Please go ahead. I'm not able to on my video because the host has stopped it. So it says. Yeah. Host, okay. Please switch on the video. I'll come on the line. Thank you very much. Thank you very much, Vivekji. This is a fantastic presentation. Very simple, very powerful presentation. I'm in B2B helping corporates to improve the profitability within 90 days time. Okay. For me, also Facebook is relevant. Should I follow all the 5 steps as you narrated for B2C also, or anything else I have to do? No, absolutely. It will work for B2B as well.
Okay. Absolutely, it will work. But I would recommend you the marketing message you are using, helping like B2B or entrepreneurs. Please let me know. Please, can you like a little bit tell me about the marketing message you are using? Yeah, You just told what me I say earlier. in my hero message is, I am within 90 days, I'll improve the profitability through a very unique action called Innovactions, which combines latent creativity and subconscious process. It's a very technical detail, but 90 days Okay, is the technical. key thing. Within 90 days, I improve the Okay, profitability of corporate They business or absolutely will work. Okay. The action plan I want to give you, so that will like Yeah. make your marketing message more powerful. more Irresistible offer that I call. Okay, Right. I will give you later. Right. Okay. Okay, Anything else you so want? he will give us. He said he'll answer your question in a few minutes. Tell you how an irresistible Yeah. offer works. Yeah, they Sure. have, yeah, absolutely. Because Okay. this is the like challenge for everyone. Okay. So I will give Rajesh ji, Shall I mute myself? yes, please. Rajesh ji, you want to come online? Ashish Bhagoria, would you like to switch on your video? Yeah, hi. Actually, I won't be able to switch on my video. No problem. Please go ahead. Can I ask the question like that only? Okay. So, विवेक जी, मेरा क्वेश्चन है कि जब हम लोग फेसबुक ऐड चलाते हैं एंड इट रन्स फॉर अ लॉन्गर टाइम, राइट, सेम एड कॉपी और सेम कैंपेन, तो उसका कॉस्ट हाई हो जाता है. तो क्या हमें मतलब सेम एड को के मल्टीपल कॉपीज रन करनी चाहिए, मल्टीपल कैंपेन रन करनी चाहिए शॉर्ट ड्यूरेशन का? देखिए, टुडे आई वांट टू गिव यू दिस सीक्रेट, जो कि ना बहुत ही मेहनत के बाद जाना है यार मैंने. ओके. फेसबुक एड जब हम रन करते हैं ना, तो वो एड्स का एक सबसेट बना देता है. इसके एल्गोरिदम ही काम करते हैं. अभी रिसेंटली स्ट्रेटेजी को मैंने जो समझा अच्छे तरीके से, तो एक एड का एक सबसेट बना देता है. मान लीजिए आपकी ऑडियंस साइज है 10,000, एग्जांपल के लिए ले लेते हैं, जो हम राइट साइड पे दिखाता है. हेलो, सॉरी, हेलो, हेलो, somebody else's mic is on. Yeah, anyways, हाँ जी विवेक जी बोलिए. ओके. सो अभी जो रिसेंटली क्या हो रहा है, वो 10,000 आपका ऑडियंस साइज बन गया. ठीक है, तो फेसबुक पे जैसे ही आप एड रन करेंगे तो 1,000 का वो सबसेट बना देगा ऑटोमेटिकली. तो एक एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ, परसेंटेज वो किसी को भी नहीं पता कितने परसेंट को वो सबसेट बनाएगा. जब भी आप परफॉर्मेंस एंड क्लिक के ऊपर क्लिक करेंगे ना, वहां पर जब आप रिपोर्टिंग बनाते हैं, तो वहां पर ना आपका फ्रीक्वेंसी बता रहा होगा, एड फ्रीक्वेंसी. जब एक पर्सन को बार बार एड नजर दिखती है ना, बार बार एड दिखती है एक ही एड, तो कॉस्टिंग बढ़ती चली जाती है. तो आपको इसकी वे में क्या करना चाहिए, मल्टीपल इंटरेस्ट आपके पास होने चाहिए, मल्टीपल एड कॉपीज होने चाहिए और मल्टीपल वीडियोस और बैनर्स होने चाहिए, तो ताकि आप एक ही ऑडियंस को बार बार रीच ना करें और एक ही ऑडियंस को बार बार आपकी एड्स नजर ना आए, जिसकी वजह से कॉस्ट बढ़ेगी ही बढ़ेगी. आपका एक ही सिंपल आंसर है, मल्टीपल चीजें आप एड रन कीजिए. ओके, बट अगर सेम ऑडियंस को हम लोग टारगेट करना चाहते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. सेव्ड ऑडियंस, देखिए सेव्ड ऑडियंस ना इसलिए हम सेव रखते हैं क्योंकि हमें बार बार ऑडियंस ना बनानी पड़े, बार बार ना उसमें डिटेल डेमोग्राफिक में ना रखनी पड़े. बट सेव्ड ऑडियंस में सारी की सारी सेव्ड ऑडियंस को थोड़ा एड सर्व हो रही है, नहीं हो रही. ओके, चलिए ठीक है. थैंक यू सो मच. थैंक यू. आई होप कि आपको आंसर मिल गया आपका. राइट. थैंक यू विवेक जी. थैंक यू, वेलकम. हेलो अभी सर. हाँ जी राजेश जी, पूछिए. मैं वीडियो ऑन नहीं कर पा रहा, शायद कुछ प्रॉब्लम है. राजेश जी का वीडियो ऑन कर दो. नहीं कर पा रहा है. ये मेरे पास आ रहा है ऑप्शन स्टार्ट करने के लिए, लेकिन कुछ टेक्निकल एरर है. एक मिनट दीजिए राजेश जी, एक मिनट मैं कर देता हूँ. टेक्निकल एरर है, मैं आपको वर्बली पूछता हूँ. पार्थ, कैन यू प्लीज स्विच ऑन द वीडियो? ये मुझे एक बार बाहर आना पड़ेगा, फिर एंटर करना पड़ेगा, तब वो वीडियो ऑन होगा मेरा. कोई बात नहीं, स्टार्ट कीजिए आप. चलिए, ओके, आप वर्बली बता दीजिए. ओके. तो आपका प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा था और हमने जितना अभी तक पढ़ा है वो सारा रिकैप हो गया, हमें ऐसा लग रहा है. तो मतलब बहुत अच्छे तरीके से आपने बताया और हमें ये पता लग गया कि हम कहाँ मिस्टेक कर रहे हैं. तो वेरी गुड प्रेजेंटेशन. तो मेरा क्वेश्चन ये है कि मैं एनिमेशन मेरा पैशन है और मैं इसमें एनिमेशन ट्रेनिंग ऑनलाइन जो है वो देने का प्रयास कर रहा हूँ. और मेरी जो नीच है वो करेक्टर एनिमेशन है, यूनिक, मतलब काइंड ऑफ एनी पर्सनैलिटी आई कैन चूज एंड एक्ट अपॉन द दैट करेक्टर.
I am not doing the full animation. I am doing only the character animation. You can मैं आपको हिंदी में बताता हूँ. जैसे मान लीजिए कोई भी करेक्टर है, चाहे वो वेटर है या राजा है या कुछ भी है, मैं उस पार्टिकुलर करेक्टर की पर्सनैलिटी पकड़ के और वो एनिमेशन करूँगा. तो ये मेरा बहुत यूनिक मतलब नीच है. और जो और लोग कर रहे हैं वो पूरा सब कुछ सिखा रहे हैं, एवरी पार्ट ऑफ फिल्म मेकिंग का. मैं सिर्फ उसका एक पार्ट सिखा रहा हूँ. तो मेरा क्वेश्चन ये है कि मैं बिल्कुल नया हूँ, तो मैं अभी ऑर्गेनिकली ज़्यादा मतलब क्लाइंट मेरे पास नहीं आ रहे हैं, और मैं चाहता हूँ कि मेरा रीच आउट बढ़े. कि क्या मेरे को फेसबुक ऐड देना चाहिए? एब्सोल्युटली. देखिए ऑर्गेनिक ना मुझे लगता है कि स्टार्टिंग में इसलिए करना चाहिए क्योंकि ना आपको पता लग जाएगा कि मेरी ऑडियंस को चाहिए क्या है एग्जैक्टली. नंबर 2 पे हमें पता चल जाएगा कि किन वर्ड्स को बोलकर वो कन्वर्ट हो रहे हैं. तो हमें कम से कम कम्युनिकेशन एंड कॉपीराइटिंग की गेम का ना आइडिया लग जाएगा कि मुझे अपनी एड कॉपी में क्या लिखना चाहिए, हमें किन वर्ड्स का यूज करना चाहिए ताकि वो कन्वर्ट हो, परसुएट हो हमारी ऑफर की तरफ. बाकी आप फेसबुक ऐड रन करना चाहते हैं कर लीजिए, प्रैक्टिस भी हो जाएगी आपकी, क्योंकि फ्यूचर में वैसे भी रन करनी पड़ती है स्केलिंग के लिए. तो आई वुड रिकमेंड कि छोटे बजट के साथ स्टार्ट कर लीजिए, ज्यादा बजट में मत जाइए, बिकॉज आई डोंट रिकमेंड कि एकदम बड़ा बजट आप लगा देंगे फिर वो लीड्स आ भी जाती हैं पर वो कन्वर्ट नहीं हो पाती. बिकॉज अगेन वो जो मैंने डिस्कस की थी कि साइकोलॉजी पार्ट वो अगर फुलफिल नहीं हो पाएगा, हम समझ ही नहीं पाएंगे व्हाई पीपल बाय, देन वो बाय नहीं करेंगे और हमारा बजट आई मीन ब्रेक इवन भी नहीं हो पाता, फिर दिक्कत आती है. सो ऑब्वियसली जाइए फेसबुक के आगे, छोटे बजट के साथ जाइए. अच्छा, तो फिर उसके बाद जो है वो फनल मैं किस तरीके से कर पाऊंगा इनको? सॉरी, मतलब उनका मतलब मेरे पास अगर क्वेरीज आनी शुरू हो गई तो मैं इनकी फनलिंग कैसे करूंगा? देखिए जब आपके पास क्वेरी आनी शुरू हो जाती है तो सिंपली आपको एक काम करना है. एक तो हर एक बंदे के साथ बात नहीं करनी, मुझे तो ये लगता है अगर आप 1-to-1 बात कर रहे हैं, 1-to-1 कंसल्टिंग कॉल करते हैं तो एक हर एक के साथ बात नहीं करती. आप जब अपने लीड फॉर्म में ना मल्टीपल क्वेश्चंस पूछें, अगर आपको लगता है कि ये क्वेश्चन पूछ के बंदा क्वालिफाई होता है, उन जिस क्वेश्चन के आंसर आपको सही मिल रहे हैं उन्हीं लोगों के साथ आप बात करें. तो मैं उनको गूगल फॉर्म मतलब भेजूंगा उनको पहले? सॉरी, गूगल फॉर्म मतलब जो है वो भर के फेसबुक दीजिए. गूगल फॉर्म भी आप भेज सकते हैं, आप कैलेंडली भी यूज कर सकते हैं. कैलेंडली भी फ्री टूल आता है, उसमें आप 10 क्वेश्चन पूछ सकते हैं. मैं बेसिकली कैलेंडली यूज करता हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है. ठीक है, उसमें आप 10 क्वेश्चन पूछ सकते हैं मल्टीपल वेज में कि भाई आप कहाँ से हो, आपका बजट कितना है, आप ये सच में आप प्रॉब्लम फेस कर रहे हो, क्या आप सच में आप प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहते हो भी नहीं करना चाहते, सिर्फ मजे लेने आए हो. तो सारे क्वेश्चन मैं पूछता हूँ जो कि उस कॉल को क्वालिफाई करने से पहले मुझे लगता है कि इससे बात करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, अदरवाइज बात ही नहीं करते यार, क्योंकि यार टाइम वेस्ट होता है, फिर डिमोटिवेशन आता है. तो आई वुड रिकमेंड कि क्वालिटी के लोगों से ही बात करें. राइट, ये आपने क्लाइंट ट्री का बताया आपने, कैलेंडली CALENDLY. ओके, थैंक यू. तो जब वो एक बार वो फाइनलाइज होगा तो फिर हम आगे उनको बता सकते हैं अपने प्रोग्राम. देखिए सिंपल ना, लीड जनरेशन कैंपेन रन कीजिए, लोगों से कॉल पे बात करिए और अपना कैलेंडली पे उनको अपॉइंटमेंट बुकिंग करवा लीजिए. ओके, ठीक है, उन कैलेंडली में एक लिंक बन जाता है, उनको दीजिए कि ये लीजिए लिंक, प्लीज इसके थ्रू आप कॉल बुक कर लीजिए, अपना जो भी कंफर्टेबल टाइम है और मेरा कंफर्टेबल टाइम है, दोनों को जो मैच कर जाए उसके बाद हम कॉल के पर आ जाएंगे जूम कॉल पे. ऑलवेज यूज जूम कॉल, वीडियो कॉल ज्यादा बेटर रहती है क्लोजिंग में. और ऑब्वियसली आपके पास एक क्लोजिंग स्क्रिप्ट हो तो थोड़ा और बेटर हो जाएगा. हाँ हाँ, ठीक है, थैंक यू. So this is the way you can use. Okay. Okay. Thank you. Okay, anybody else has any questions? Sir, I have a question. Shall Please switch on your video and introduce yourself and let's go ahead. Okay. Can you hear me? Loud and clear. Okay, can you hear me? Am I hearable? Yeah, I can hear you, but Okay. I'm not able to see your video. I know even my phone is stuck, I think. Okay, I'll go with the question. Thanks, Vivek, for the information you have shared to us. And I'm into digital marketing agency. I run a digital marketing agency, and since many years I'm into same thing. I've been working with funnels and everything, but still I'm not able to crack that code. What should be the ideal budget for running such campaigns? So see, if I recommend you, so I can say it's all about the testing first of all. Yes, it's everything all about the testing, and the smallest budget we should use at least 300 rupees for one campaign.
Okay. And the second thing is it's not about the what kind of budget or CPL or like CPC. I don't like think in this way. I just see one thing only: cost per acquisition. Okay. Like how many sales I want in this month. If my product price is 10,000 rupees, I want to make 1 lakh rupees, then I need 10 sales. Very simple. In order to get 10 sales, I need to do 50 calls. Okay, the 20% conversion I am making. Very simple formula. In order to get 20 qualifying calls, I need to generate 40 leads, 40 unqualified leads. And in order to generate only 40 unqualified leads, I need to put at least 50 rupees per lead. So it means you can get the budget. Okay. So I calculate the budget with my goal. Okay. I don't think कि मुझे इतना बजट लगाना है उतना बजट लगाना है. I basically yeah. हाँ, So please. Vivek ji, what will happen is अगर मेरे को टेस्टिंग करना है, as you said 300 rupees per campaign, तो अगर टेस्टिंग जब आप करते हो तो टेस्टिंग ज्यादा एडसेट बेस बजट पे करते हो या कैंपेन सीबीओ लेवल पे ज्यादा करते हो? देखिए दो चीजें हैं. ऑब्वियसली सीबीओ पे भी आप कर सकते हैं. सीबीओ में मैं तब करता हूँ, देखिए हर एक की स्ट्रेटेजी अलग है. मैं आपकी खुद की बताता हूँ. सीबीओ में 300 रुपीज तो नहीं लगाने चाहिए, वो तो नहीं काम करेगा. ठीक है, सीबीओ में थोड़ा ज्यादा चाहिए. अब एडसेट में 300 रुपीज पूरा 300 राउंड फिगर में नहीं, 350 60 ऐसे लेता हूं मैं. ठीक है, तो तब एडसेट को टेस्ट कर लेता हूं. जब सीबीओ की बात आती है तो ऑब्वियसली आपको ज्यादा बजट ही चाहिए, क्योंकि जितने एडसेट रन हो रहे हैं, मान लीजिए एक सीबीओ के अंदर आपके एक कैंपेन में 5 एडसेट रन है, तो कम से कम 5 को 300 से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 1500 बजट निकल कर आ गया. तो 1500 से 1600 या 2000 बजट लगाकर चले एक कैंपेन में, तो देन वो ऑटोमेटिकली डिवाइड कर देगा, और उसमें से भी जो मेरे को विनिंग मिलता है उसको मैं डुप्लीकेट कर देता हूं, बाकी को मैं छोड़ देता हूं. तो ऑब्वियसली सीबीओ यूज कर रहे तो बजट थोड़ा सा हाई तो फिर लगाना ही चाहिए. Okay, I hope. Yeah, I have one more follow-up question for this. Please. Something, see, I'm also into this digital marketing. तो मुझे है ना एक प्रॉब्लम आता है कि क्लाइंट्स के साथ जब काफी सारे क्लाइंट्स के साथ ऐसे काम करते हैं ना, तो लोकल क्लाइंट में मुझे प्राइसिंग में बहुत प्रॉब्लम आती है. तो हाउ डू यू चार्ज देम? दैट इज द बिगेस्ट क्वेश्चन. मतलब वही समझ में नहीं आता कि इनके साथ कैसे बात करके क्या डील कैसे क्लोज की जाए. भाई मैं भी तुम्हारा भाई था 2 साल पहले. बड़ी किचकिचबाजी होती थी यार. आई मीन लोग जान खा जाते हैं. 5,000 रुपए का क्लाइंट, आई मीन सबसे बड़ी तो चीज मैंने स्विच करी, हाई टिकट में आओ यार. सबसे पहले तो हाई टिकट में आओ. जितना छोटे क्लाइंट के पास हम जाएंगे ना, उतनी जान खाएगा ही खाएगा वो. और नंबर 2 के आपने क्या प्रोमिस कर रखे हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ना हम क्लाइंट लाने के लिए ना ओवर प्रोमिस कर देते हैं और डिलीवरी नहीं कर पाते. बड़े क्लेश बनते हैं फिर. सो आई वुड सजेस्ट यू कि भाई अपनी ऑफर पे काम करो यार. Okay. Most important thing I have ever find in my digital marketing career, and that is offer. लोग आपको डिजिटल मार्केटिंग के लिए पैसा नहीं देंगे, लोग आपको प्रोडक्ट के लिए पैसा नहीं देंगे, लोग आपकी ऑफर के लिए पैसा देंगे. किसकी ऑफर कितनी पावरफुल है, कितने लेवल पे मेरे रिजल्ट्स को जनरेट करने में हेल्प कर रहा है, कितना बड़ा रिवेन्यू मुझे जनरेट करने में मदद कर सकता है. और जब हम इंसान को बताएंगे कि भाई यू आर नॉट टॉकिंग विद अ डिजिटल मार्केटर ओनली, यू आर टॉकिंग विद an expert who already generated so many results. And the second thing is that कि मुझे लगता है कि एक स्क्रिप्ट होनी जरूरी है. जब भी डिजिटल मार्केटिंग में मैंने खुद पे काम किया, क्लोजिंग स्क्रिप्ट होनी बेहद ज्यादा जरूरी है, बेहद ज्यादा जरूरी है. एंड आई वुड रिकमेंड कि जो मैंने खुद भी बुक पढ़ी स्क्रिप्ट बनाने के लिए, सेल लाइक क्रेजी, मेरी फेवरेट बुक है यार. वो आप भी यूज कर सकते हैं, सेल लाइक क्रेजी. Thanks, Vivek ji. Thank you so much for your help. Welcome, bro. Okay, guys. Next, we are going to call Savi. Savi, you can switch on your camera and ask your question. Okay, guys. अगर आप लोगों के पास questions हैं, विवेक हैं हमारे साथ थोड़ी देर के लिए. सबसे पहले, anybody else wants their question answered? So the first thing I would request Savi and Harshit and Rajesh ji and स्नेहल, क्या आप चाहते हो कि आपको विवेक की गाइडेंस और हेल्प अभी मिले या आगे भी कभी हेल्प चाहिए हो तो मिले? ओके, सो जब आप एक काम कीजिए, तो आपके पास फेसबुक ग्रुप है लर्न सोशल मीडिया, उस पर हमने सवाल डाला है, आज आपका सबसे बड़ा लर्निंग एक्सपीरियंस क्या था? तो सबसे पहले आप उस पर लर्निंग एक्सपीरियंस डालिए. उसके बाद उसी के नीचे कोई सवाल है तो वो डाल दीजिए. इज दैट क्लियर टू एवरीवन?
Snehal, Harshit, everybody, please put your learning and everything over there. And I'm going to give all of you people 2 minutes. 2 मिनट में. पार्थ ने आपको फेसबुक ग्रुप का लिंक दे दिया है चैट में. विवेक, मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करूंगा, आप भी अगर ग्रुप ज्वाइन कर देंगे तो कम्युनिटी के साथ इंटरैक्ट कर सकते हो. आप पुराने माइक्रो वीडियो मास्टरी के सारे ग्रुप्स में थे. लर्न सोशल मीडिया पे आप हो कि नहीं मुझे ध्यान नहीं. हाँ अभी नहीं, मैं इसमें नहीं हूँ, मैं ज्वाइन कर लेता हूँ. आप ज्वाइन कर दीजिए. एंड गाइस, एनीबडी हैज क्वेश्चंस, नो प्रॉब्लम, बट आप अपने पहले क्वेश्चंस को और अपने बिगेस्ट टेकअवे को पुट इट ऑन दैट social media group, Learn Social Media. So can I ask? Go ahead, Yeah. Sabi. Yeah. Hi, Vivek. Thank you so much for a very informative presentation. मतलब काफी फ्रैगमेंटेड इंफॉर्मेशन को आपने बहुत शॉर्ट एंड क्रिस्प फॉर्मेट में डिलीवर किया, तो काफी रिवीजन हो गया. एंड काफी चीजें जो बीच में मिस आउट हो रही थी वो भी ध्यान में आई कि अच्छा ये मिस आउट हो रहा है यार. सो थैंक यू सो मच फॉर दैट. मेरा क्वेश्चन ये था कि आई एम एक्चुअली अ वास्तु एक्सपर्ट, तो आई एम प्लानिंग टू रन एड्स. मेरा टारगेट ऑडियंस, वन ऑफ माई नीशेस NRIs जो US में बेस्ड है, तो मेरे को फेसबुक एड्स रन करने स्पेसिफिकली US में. मे बी मैं स्पेसिफिक कुछ एरिया से स्टार्ट करने का सोच रही हूँ, बट देन फॉर समथिंग लाइक दिस, क्योंकि इंडिया में एड चलाना वर्सेस बाहर एड चलाना की कॉस्टिंग में बहुत फर्क होता है. तो अगर मुझे यूएस में एड चलाना है फॉर एग्जांपल, तो मेरे को कितना बजट या जैसे आपने बताया गोल के अकॉर्डिंग आई कैलकुलेटेड बैकवर्ड्स, बट देन स्टिल लाइक फॉर एग्जांपल अगर मेरे को मंथ की लेट्स से 20 कन्वर्ट्स चाहिए इन अ मंथ फ्रॉम माय क्लाइंट्स ओवर देयर, तो उसके हिसाब से मुझे कितना बजट रखना पड़ेगा? ओके, थोड़ा सा बैक में चलते हैं. अब आपने जो लास्ट टाइम कॉल करके अपने क्लाइंट को एक्वायर किया था, तो आपकी सबसे पहले तो क्लोजिंग परसेंटेज कितनी है? लाइक कितने में से कितने लोग आप कन्वर्ट इजीली कर पाते हैं? 10 में से 1 या 10 में से 2 या 20 में से 1, 5% क्लोजिंग, तो उसके भी हाफ पे हम लोग आगे बढ़ेंगे. फिर आपके अकॉर्डिंगली यूजुअली मेरी जो भी क्लोजिंग अभी आज तक रही है वो वर्ड ऑफ माउथ के थ्रू ज्यादा रही है. इंस्टाग्राम वगैरह पे मैं एक्टिव हूँ लास्ट 6 to 8 मंथ से, रील्स वगैरह भी मैं अपलोड कर रही हूँ. बट जब कोई भी लीड मुझे वर्ड ऑफ माउथ या थ्रू रेफरेंस आती है, ऑब्वियसली उसके कन्वर्जन चांसेस बहुत हाई होते हैं कंपेयर टू जो इंस्टाग्राम पे लीड आती है. सेकेंडली मैं वर्कशॉप्स भी लेती हूँ वास्तु से रिलेटेड, तो उधर से डायरेक्टली अगर कोई मेरे पास आता है तो वो 100% कन्वर्ट होता है. जो अगर वेबिनार के थ्रू या वही ट्रस्ट बेस्ड फॉर्मेट से आता है, तो ऑब्वियसली वैल्यू बेस्ड फॉर्मूला आप यूज कर रहे हैं ना, वैल्यू बेस्ड मार्केटिंग. हाँ वो ऑब्वियसली. सो देखिए, अब यूएस की बात करें, ऑब्वियसली जो मेरे यूएस के कैंपेन मैंने जो पास में रन किए थे उसमें ना 4 गुना महंगी लीड आती है. तो अगर इंडिया में लीड मुझे 30 रुपीज की पड़ रही है तो वो 121-30 रुपीज की. हालांकि इंडिया में बहुत महंगी हो गई अब एड्स, अब बाहर की भी एड्स और थोड़ी महंगी पड़ेगी. तो अगेन आई कैलकुलेट विद के फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखिए, आपने बोला ना रिकमेंडेशन से लोग आते हैं वो कन्वर्ट होते हैं, बिकॉज ट्रस्ट फैक्टर रिकमेंडेशन के साथ बन चुका है. अब यहाँ पे अगेन लार्जर मार्केट फॉर्मूला जो मैं अप्लाई करता हूँ, 3% पीपल विल बाय इमीडिएटली. ठीक है, अगर आपकी 100 लोगों से बात हुई है तो 3 से 5 लोग, ये डिपेंड करता है कि आपकी सेल्स पिचिंग क्या है, आपका प्राइस क्या है, आपकी ऑफर क्या है. तो मल्टीपल वेज में, ऐसा नहीं है कि सबके लिए 3 to 5% होता है, किसी के लिए 10 भी हो जाता है, किसी के लिए 3 हो जाता है. तो हर एक के लिए जो अब एक ही माइंडसेट अपना बनाना होता है, जो मैंने भी बनाया है कि जो लोग मना कर रहे हैं वो 95% में है अभी के लिए, बट ऐसा नहीं है कि वो परमानेंट ना है. परमानेंट ना नहीं है, उन्हें फॉलोअप सिस्टम में मैं रखता हूं. अपने एक ईमेल लिस्ट रेगुलर बिल्ड करता हूं, एक कम्युनिटी बना रखी है व्हाट्सएप ग्रुप पे और अपना टेलीग्राम ग्रुप पे, वहां पे उनको नर्चर करते रहना. सो बजट की बात करते हैं. अब बजट पहले तो देखना पड़ेगा लीड पर कॉस्ट कितनी आ रही है आपकी इंडस्ट्री में. सबसे पहले तो मुझे लगता है कि आपको टारगेटिंग करनी भी थोड़ी चैलेंजिंग रहेगी. इंडियंस लोग जो फॉरेन में जाकर एनआरआईज है, तो ऑब्वियसली वहां पर आपको क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो सजेशन मेरी तरफ से ये आ जाएगा कि आप यूएस में टारगेट कीजिए और उन लोगों को टारगेट कीजिए जिन लोगों ने इंडियन ब्रांड्स को फॉलो कर रखा है, तो जिससे आप इंडियन लोगों के पास पहुंच जाएंगे. या फिर इंडियन कल्चर को फॉलो करते हैं, जैसे कि भगवत गीता से रिलेटेड कोई चीज है, ऑब्वियसली वो इंडियन ही होंगे मैक्सिमम. फॉरेन के लोग से रिलेटेड या ऐसी चीजों से रिलेटेड, ऐसी चीजों से रिलेटेड होते हैं. ठीक है, जैसे कि स्वामी विवेकानंद या ऐसे
बड़े लोग हैं, इनको जानते हो, तो वहां से आप उन लोगों तक पहुंच जाएंगे। देन द सेकंड थिंग इज दैट कि आपको देखना पड़ेगा लीड पर कॉस्ट कितना आ रहा है। ठीक है, लीड पर कॉस्ट अब बात करते हैं, वो कम भी होता है, ज्यादा भी होता है, ये डिपेंड करता है आपकी एड कॉपी के ऊपर, आपकी सीटीआर के ऊपर। सीटीआर इज क्लिक थ्रू रेट। ठीक है, क्लिक थ्रू रेट जितना बढ़ता जाएगा उतनी एड की कॉस्ट कम हो जाएगी, लीड की कॉस्ट कम हो जाएगी। सो ये सब चीजें ना, आई मीन पहली बारी में आंसर करना बड़ा ही मुश्किल है। आई मीन इसका पहली बारी में आंसर शायद हो ही नहीं सकता जबकि हम डेटा को ना देखें। तो नहीं, बट फॉर एग्जाम्पल अगर मैं मेंटली, जैसे इफ आई एम टॉकिंग टू एन एजेंसी और मैं अगर एड चला रही हूँ, तो मेरे पास कितना बजट, लाइक मेंटली मैं कितना प्रिपेयर होके चलूं कि इतना तो मुझे स्टार्टिंग से आई विल हैव टू इन्वेस्ट टू गेट कन्वर्ट्स। ओके, सो सबसे पहले आप एजेंसी से ये चीज आपको फाइनलाइज करनी होगी कि आप कितने रुपए लीड पर कॉस्ट हमें लाकर देंगे। ठीक है, एक एवरेज इंडस्ट्री बेंचमार्क्स होता है, उसको आपको फॉलो कर लेना चाहिए, जैसे कि ₹5 पर लीड या $7, नॉट रुपीज बोल रहा हूँ, $5 पर लीड आपका यूएस के अकॉर्डिंग आ गया। ठीक है, तो आप लगाकर चलिए ₹350 के आसपास आपका पर लीड कॉस्ट आ गया। अब 350 के हिसाब से आपने 10 लीड जनरेट करी, तो आपको ₹3500 पे करना पड़ा। ठीक है, आपने 20 लीड जनरेट करी, तो अराउंड आपको 7000 पे करना पड़ा। तो 20 लीड में आपकी एक कन्वर्जन आती है, तो 7000 पे लगा के आपके क्या इतने रुपए वापस आ रहे हैं, पहले ये चीज देखना जरूरी होता है। आपका जो प्रोडक्ट का साइज, अगर आप यूएस में बेच रहे हैं तो ऑब्वियसली वो डॉलर्स के अंदर ही होना चाहिए। हाँ, तो कम से कम लगाकर चलिए $200, $250 इतना होना चाहिए। वो स्टार्टिंग प्राइस $500-600 टू एटलीस्ट 1000-1100, इतना प्राइसिंग तो है ही है। ऑब्वियसली फिर देन आप ऑब्वियसली यूएस के अंदर जाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो देन वो अगर प्रॉब्लम ये आ जाती है कि ब्रेक इवन भी नहीं होता, सो आई वुड रिकमेंड कि आप लोगों को ना लीड जनरेट कीजिए। नॉर्मली किसी को भी बोलिए लीड जनरेट करने के लिए, उनको कॉल करके ना आई मीन या तो एक प्रेजेंटेशन रिकॉर्ड कर लीजिए, जिसे हम VSL भी बोलते हैं, या फिर उनको वेबिनार में बुला लीजिए, तो वहां से कन्वर्जन ऑब्वियसली ज्यादा ही आएंगी। सो यही है बस, दैट्स इट। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। ओके, वेलकम। ओके, हर्षित जी आपकी बारी। थैंक यू अभी सर, थैंक यू सर। विवेक जी, आपके मैं वीडियोस रेगुलरली देखता हूँ यूट्यूब पे, बहुत हाँ? अच्छे लगते हैं सीरियसली? एक्चुअली मैं, आप मेरे फ्यूचर हो, है ना। आई ऑल्सो डू डिजिटल मार्केटिंग फॉर कोचेस कंसल्टेंट्स, है ना, वो मेरी माइक्रो निश है। सो आपको मैं बहुत देखता हूँ एंड बड़ा अच्छा लगता है। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। ओके, थैंक यू सो मच अभी सर। यस यस, थैंक यू सो मच अभी सर। ओके, तो मेरा एक सवाल था, आपका जो सेकंड पॉइंट है ट्रस्ट का, उस पे आपने कहा कि यू हैव टू कीप एडिंग वैल्यू टू पीपल। तो आई अंडरस्टैंड कि हाँ, ऐड करना वैल्यू, बट एक चीज जो मैंने ध्यान दी है, जो आपने खुद ने दिखाई अपनी चीजों में, कि टेस्टिमोनियल्स वो बड़े इंपॉर्टेंट फैक्टर होते हैं। तो उसका कोड क्रैक करना है मुझे, उसमें आप हेल्प कर दो कि कैसे लोग ज्यादा से ज्यादा बेटर टेस्टिमोनियल्स ला सकते हैं अपने लिए, क्योंकि वो ट्रस्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो व्हाट स्ट्रेटजी डू यू रिकमेंड? देखिए, मैं टेस्टिमोनियल के लिए कोई स्ट्रेटजी यूज नहीं करता, मुझे लगता है इसकी स्ट्रेटजी होती ही नहीं है कोई, क्योंकि क्लाइंट जो आपके बने हैं, आप उनको रिजल्ट देंगे, वो आपको टेस्टिमोनियल देंगे ही देंगे यार। इसकी कोई स्ट्रेटजी नहीं है। हाँ, अगर कोई बिगनर है तो उसको ना क्या करना चाहिए, स्टार्टिंग में फ्री में काम कर लेना चाहिए, बाय एक्सचेंजिंग दी वीडियो, के मुझे भाई वीडियो दे देना, मैं फ्री में आपके लिए काम कर दूंगा। तो वहां से थोड़ा फीडबैक मिल जाएगा। बाकी मुझे लगता है टेस्टिमोनियल तो कस्टमर दे ही देते हैं अगर आप अच्छा काम करते हैं तो। राइट, थोड़ा सा मैं चेंज करूंगा क्वेश्चन को। मैं उस तरफ लेके जाना चाहता हूँ कि अगर हम किसी भी ऐसे पर्सन के लिए काम कर रहे हैं जो उतना फेमस नहीं है, उसके टेस्टिमोनियल आते हैं तो उतना इंपॉर्टेंस नहीं होता है। आपके टेस्टिमोनियल्स में केवल किशन जी के नाम आ रहे हैं, बाकी लोग क्या आ रहे हैं, तो मैं बस ये जानना चाह रहा हूँ कि अच्छा, उनके लिए भी आपने फिर फ्री में काम किया होगा शायद, है ना, यही काम है ना। तो थैंक यू सर, थैंक यू। ओके, हाँ, उनके साथ काम किया ऑब्वियसली, और उनके साथ पॉडकास्ट किए हैं, तो ऑब्वियसली यार लोगों के साथ नेटवर्किंग इज द गेम यार। बड़े लोग हैं, नेटवर्किंग बनाओ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सर। ओके, वेलकम ब्रो। ओके, सो गाइस, आप लोगों ने जो सवाल है अपने, हैव यू एडेड इट टू द फेसबुक ग्रुप? कितने लोगों ने फेसबुक ग्रुप पे वो मैसेज का जवाब दे दिया? How many people have given the answer on the Facebook group? Okay, okay.
ठीक है पार्थ, प्लीज कीप नोटिंग हु आर द पीपल हु आर रेगुलरली टेकिंग एक्शन एंड आर एंगेजिंग ऑन द ग्रुप। जो लोग ग्रुप के साथ एंगेज कर रहे हैं, थैंक यू वेरी मच। हम लोगों ने आज से हर क्लास की अटेंडेंस और कितने लोग कौन से चैलेंजेस कर रहे हैं वो ट्रैक करना शुरू कर दिया है। महीने के एंड में सारे स्टूडेंट्स को आपको एक शीट दिखाएंगे हम, कितने लोग क्लासेस में आए, कितने लोगों ने आपने अपना अटेंड किया, चैलेंजेस करे। उससे आपको पता लग जाएगा कि मैं जिम जा रहा हूँ या नहीं जा रहा हूँ, और अगर जिम जा रहा हूँ तो वेट्स कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ। और जब महीने के एंड में आपको लगेगा मेरा बिजनेस अगर चल रहा है तो इस वजह से चल रहा है क्योंकि मैंने ये चीजें करी, और अगर नहीं चल रहा तो उस चीज के बारे में भी आपको एक क्लैरिटी मिल जाएगी कि मैं क्यों नहीं कर पा रहा हूँ, बिकॉज मैं एक्शन नहीं दे रहा हूँ हर चैलेंज के ऊपर। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? ऑसम। ओके, यस अमित, गो फॉर इट। Hello. Yeah. Thank you, Vivek. Nice presentation. थैंक यू। आपने काफी उसको समराइज किया जो इतने बड़े बड़े टॉपिक्स हैं, और मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपका साइकोलॉजी समझना बहुत जरूरी है कि लोगों की साइकोलॉजी की कब वो बाय करते हैं। मैं फिजियोथेरेपिस्ट हूँ और आई एम ट्राइंग टू लॉन्च माय प्रोग्राम्स ऑनलाइन। मुझे आईटी प्रोफेशनल को वो करना है, टच करना है, बट मैं उसमें कंफ्यूज हूँ कि आईटी प्रोफेशनल वर्ड यूज करूँ कि डेस्कटॉप प्रोफेशनल यूज करूँ, और तो किस तरह से हम क्या वर्ड यूज करें जिससे हम उन लोगों तक पहुंच सके जिनको सिटिंग की प्रॉब्लम है और वो उनको बैक पेन, नेक पेन, जॉइंट पेन इश्यूज है। तो व्हाट वर्ड? आपका आंसर आप ही के पास है। मैं एक चीज बताता हूँ, अगर हमें आपके पास आप क्रिकेट बैट बेचते हैं, ठीक है, तो हमें किसको टारगेट करना चाहिए? जो क्रिकेट खेलते हैं। अब वहां पर हमें किसको फॉलो करना चाहिए, किसको टारगेट करना चाहिए? जो क्रिकेट खेलते हैं, हाँ, जो महेंद्र सिंह धोनी को फॉलो कर रहे हैं, जो विराट कोहली को फॉलो करते हैं। और फिर जो खेलता कौन है? जो 25 से एज के काम के, ठीक है। इसके साथ ही क्रिकेट लवर, ऐसे बड़े सारे पेजेस हैं। तो फेसबुक पे जो टारगेटिंग हो रही है वो इस बिहाफ पे होती है, क्योंकि जो फेसबुक ने हम लोगों को ये देख रखा है कि हम किन किन पेजों को लाइक करते हैं, किन ग्रुप्स को हमने फॉलो किया हुआ है, तो उसके बिहाफ पे टारगेटिंग हो रही है। इसी तरीके से आईटी सेक्टर की जो बात कर रहे हैं, आईटी सेक्टर में कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर्स होंगे, कुछ ऐसे कंपनीज होंगी, कुछ ऐसे टूल्स होंगे, कुछ ऐसे पेजेस होंगे, कुछ ऐसी बुक्स होंगी, कुछ ऐसी मैगजीन होंगी जिनके नाम आप गूगल पे सर्च करें और वो फेसबुक ऐड में आप जब डालेंगे डेमोग्राफिक्स में आपको शो करेंगे। उनको टारगेट कर दीजिए, और वो उनके बैक में पेन है या नहीं है वो आपकी एड कॉपी और आपकी वीडियो बोल ही रही है। आप उन्हें बोलेंगे ना एक आईटी प्रोफेशनल है, और अगर आप इस प्रॉब्लम से फेस कर रहे हैं तो ऑटोमेटिकली वो क्वालिफाई आपकी वॉइस के साथ भी हुई है। आपकी वॉइस नहीं आ रही। सो मुझे एक चीज और पूछना था, मुझे टाइम कम रहता है, सो आई वाज लुकिंग फॉर वेंडर्स सही ढूंढना, बेस्ट ढूंढना इज अ बिग चैलेंज। सो भाई सच में है। और क्या हमें सीखना चाहिए इसको कि इज इट लर्नेबल, कि अच्छा ऐड करने के लिए कैन वी लर्न इट और वी शुड लुक फॉर अ गुड वेंडर? बिकॉज़ देखिए सबसे पहले ना मुझे लगता है कि बेसिक्स आपके पास होने जरूरी है, ताकि कोई भी पर्सन ना आपका पागल ना बना सके। बेसिक्स जरूरी है, आपको पता होना जरूरी है, क्योंकि ये ना हो कल को वो बोले कि सर अभी हम रीमार्केटिंग एड रन कर रहे हैं, सर अभी हम लीड्स ला कर देंगे, सर अभी हम कन्वर्जन बना रहे हैं, सर हम लैंडिंग पेज बना रहे हैं, और इस तरीके से आपके 2 महीने वेस्ट करें, आपका पैसा वेस्ट करें, और फिर आपको ट्रस्ट ही ना रहे कि डिजिटल मार्केटिंग ही नहीं काम करती। सो मेक श्योर वो बंदा ढूंढना थोड़ा सा मुश्किल रहता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आप जिसको भी लाइक जैसे सर्विसेज लेना चाहते हैं पहले उसके बारे में इंटरनेट पे देख लें, उसके टेस्टिमोनियल देख लें, एक बातचीत करके भी पता चलता है, उसकी वाइब्स बता ही देते हैं कि बंदा ठीक है कि नहीं है। वो थोड़ा ऑब्जर्वेशन हमारी काम करती है। ये थोड़ा डिफिकल्ट काम है, बट इसमें मैं क्या ही बता सकता हूँ बट इसमें मैं यही रिकमेंड करूंगा कि आपको खुद को थोड़ा सा लाइक सीखना चाहिए, इसमें पता होना जरूरी है। एज एन एंटरप्रेन्योर मुझे लगता है कि जहां से सेल्स आ रही है ना वो सारे प्रोसेस हमें खुद ही पता होने चाहिए, क्योंकि सेल्स इज द ब्लड। बाकी सारे काम हम आउटसोर्स कर देंगे, जैसे कि टेक्निकल करना है, कुछ वेबसाइट डेवलपमेंट, ये वो सब चीजें कर देते हैं, मैं भी करता हूँ,
वीडियो एडिटिंग, मैंने फेसबुक मैंने सॉरी सोशल मीडिया मैनेजमेंट, लेकिन फेसबुक ऐड मुझे लगता है कि मुझे खुद ही करने चाहिए। बट फिर भी अगर आप किसी को हायर करना चाहते हैं, बट बेसिक आपको नॉलेज होनी जरूरी है, बहुत जरूरी है। बस बेसिक स्ट्रक्चर सीख लीजिए आप। थैंक यू अमित। थैंक यू सर, थैंक यू। ओके विवेक, थैंक यू वेरी मच। जिस कम्युनिटी में आपने कहा थोड़े साल पहले आप थे, आप वापस आके उनको आप इतना कुछ सिखा रहे हो, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। आपने फेसबुक ग्रुप आप ज्वाइन कर दीजिएगा, मैं आपको अभी फेसबुक रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लूंगा आपकी। और अगर लोग आपसे संपर्क करना चाहते हैं तो अपना ईमेल एड्रेस भी आप चैट में डाल दीजिए, जो लोग आपसे संपर्क करना चाहते हैं। एंड गाइस, आई वुड रेकमेंड ऑल ऑफ यू पीपल, इनका एक यूट्यूब चैनल है, उस यूट्यूब चैनल पे जरूर जाइए, बहुत अच्छे वीडियोस बनाते हैं वो। उस YouTube चैनल को भी फॉलो कर सकते हैं, ईमेल भी मैं आपको दे रहा हूँ। प्लस अब वो आपके साथ आप ही के फेसबुक ग्रुप में विवेक जुड़ गए हैं, तो आप उसी ग्रुप में उनके साथ इंटरेक्ट भी कर सकते हैं। जस्ट मैं अभी रिक्वेस्ट सेंड कर देता हूँ, 1 मिनट दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल। ओके प्लीज। या सो गाइस, कैन वी गिव अ बिग थैंक यू टू विवेक। ओके अब जाने से पहले आपके लिए चैलेंज है, क्योंकि अगर आपने कुछ सीखा और उसको इंप्लीमेंट नहीं किया तो उसका कोई फायदा नहीं है। अब आपके चैलेंज का टाइम आ गया। कितने लोग चैलेंज को देख के डर के जाना चाहते हैं, वो अभी जा सकते हैं, आपके पास 2 मिनट है। और जो लोग चैलेंज का सामना करना चाहते हैं, वो जस्ट से चैलेंज एक्सेप्टेड, CA इन द कमेंट बॉक्स। ओके, सो चैलेंज एक्सेप्टेड हो चुका है बहुत लोगों से। विवेक, अब आप चैलेंज दे दीजिए। ओके, थैंक यू सो मच। सो चैलेंज थोड़ा सा मुश्किल है, शायद थोड़ा आसान भी हो सकता है, बट सभी के इसको देखने के व्यू के ऊपर है, या इजी है या मुश्किल है। बट इन माय पॉइंट ऑफ व्यू, इन एंटरप्रेन्योरशिप एक चीज ऐसी है, अगर आपने इस पे काम कर लिया ना, इररेसिस्टिबल ऑफर, देन फेसबुक एड्स, लैंडिंग पेज, डिजिटल मार्केटिंग, सब कुछ इजी हो जाएगा, सब कुछ इजी हो जाएगा। इसका मैं एग्जांपल भी आपको दूंगा, अपने क्लाइंट्स का भी और खुद का भी, ताकि आपको आइडियाज मिले, एग्जांपल मिले। ओके, तो अब जब भी हम ऑफर बनाते हैं, इसमें एक तो बोल्ड प्रॉमिस होना चाहिए, बोल्ड प्रॉमिस। और सबसे पहले तो नीश क्लियर होनी चाहिए कि हमारी टारगेट ऑडियंस, उसका नाम आना चाहिए, टारगेट ऑडियंस के नाम के साथ टारगेट ऑडियंस की प्रॉब्लम आनी चाहिए, एक यूनिक सोल्यूशन आना चाहिए जो कि मार्केट में इजीली अवेलेबल नहीं है, क्योंकि लोग यूनिक चीज चाहते हैं, वही पुरानी चीजें नहीं चाहते। तो उसका भी मैं एग्जांपल दूंगा। फिर फाइनली बोल्ड प्रॉमिस, तगड़े वाला प्रॉमिस। और रिसेंटली मैं एक पढ़ रहा था कि अपनी ऑफर कैसे बनाते हैं। उन्होंने एक चीज बताई कि जब आपकी ऑफर आप बना रहे हैं, उसमें इतने बोल्ड प्रॉमिस हैं, वो अगर आपको बनाते टाइम थोड़ा डर नहीं लग रहा ना, तो वो बोल्ड प्रॉमिस है ही नहीं, तो वो तगड़ी ऑफर है ही नहीं, सॉलिड ऑफर नहीं है। तो थोड़ा आपको भी डर लगना चाहिए कि यार इतना प्रॉमिस कर रहा हूँ, पता नहीं वो पूरा हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। ऑब्वियसली आप पूरा वही करें जितना आप जानते हैं, उससे ज्यादा आप करने की कोशिश करेंगे तो गड़बड़ भी हो जाती है। बट आई थिंक थोड़ा सा एक्स्ट्रा करना चाहिए, क्योंकि तभी हम कॉम्पिटिटिव एडवांटेज बना पाते हैं। सो ये मेरे व्यूज हैं। तो अब हम ऑफर कैसे बनाएंगे, ये चैलेंज आप सभी लोगों के लिए है। उसका एग्जाम्पल पहला देता हूं मैं अपने क्लाइंट का, जिनका नाम है चेतन, पीसीओएस एक्सपर्ट। तो उनकी रिसेंटली हमने ऑफर बनाई, डिफीट योर पीसीओएस इन जस्ट 90 days और refund your complete 100% money without asking a single question. This is the offer. ये ऐसी ऑफर बनी जो कि मार्केट में किसी के पास नहीं थी। पीसीओस के बड़े सारे कंसल्टेंट एंड कोचेस भरे पड़े थे, लेकिन ये ऑफर जब वो बना रहे थे, वो भी बोल रहे थे कि विवेक 100% रिफंड करूंगा तो मैं कमाऊंगा क्या। मैंने बोला आप 90 डेज में लोगों को रिजल्ट ला के दे सकते हैं। उन्होंने बोला 90 डेज छोड़ो यार, मैं तो 60 डेज में लाकर दे दूंगा। मैंने फिर डर क्यों रहे हो यार, डरना किस बात का है। तो इस तरीके से। एंड द सेकंड थिंग इज दैट जो सॉरी नॉट सेकंड एग्जांपल जो मैं खुद का देना चाहता हूं। जब मैंने देखा सभी लोग कोचेस एंड कंसल्टेंट को सर्व करने लगे हैं, तो यार अभिजीत सर जितना बड़ा ब्रांड है और इतने बड़े इंसान है, तो यार फिर तो गेम हम कहीं भी कर सकते हैं। अब हमारे जैसे हैं जो बिगिनर है, जिन्होंने स्टार्ट किया, उनको कुछ तो अलग सोचना पड़ेगा यार, क्रिएटिव थिंकिंग और करनी पड़ेगी, लाइक प्रोडक्ट इनोवेशन करनी पड़ेगी। तो मैंने फाइंड आउट किया कि मैं कैसे अपनी ऑफर डेवलप करूं। सो मैंने अपनी ऑफर डेवलप करी, हेल्पिंग कोचेस एंड कंसल्टेंट टू बिल्ड 7-figure बिजनेस 100% guaranteed in just 90 days और I will work for free। ये मेरी ऑफर रही।
इस ऑफर ने जो लोग लाइक ज्यादा वो कर रहे थे ना, यार पैसे नहीं है सर, कि इतने एक्सपेंसिव प्रोडक्ट आप बेचते हो, वो सब चीजें, वो इस इररेजिस्टिबल ऑफर ने उनके दिमाग की रेजिस्टेंस को ब्रेक किया। देखिए गेम एक ही है, साइकोलॉजी एक ही है, और वो ये है कि कितनी स्पीड में आप अपने कस्टमर के ऑब्जेक्शंस को हटाते जाते हो, रेजिस्टेंस को हटाते जाते हो, और आपके कस्टमर के बाइंग डिसीजन इजी होते जाते हैं। दैट इज ऑफर। ओके, देन इस ऑफर को पूरा करने के लिए किन किन चीजों की जरूरत रहती है, जो कि 5 स्टेप मैंने आपको बताए थे। अगर किसी को 7 फिगर बिजनेस बिल्ड करना है 90 डेज में विदाउट यूजिंग एक्सपेंसिव टूल्स और 100% गारंटी के साथ, तो देन ये 5 चीजें उनको अप्लाई करनी होती हैं। अब वो 5 चीजें जब अप्लाई करेंगे, प्रोसेस को 100% इंप्लीमेंट करेंगे, तो उन्हें रिजल्ट आ ही जाएंगे। जब उन्हें रिजल्ट आ ही जाएंगे तो मैं 100% रिफंड क्यों करूंगा? इट्स अ वेरी सिंपल गेम। ओके, तो इस साइकोलॉजी से हम लोग खेलते हैं। तो इस तरीके से आपको भी अपना मार्केटिंग मैसेज बनाना है। यू कैन मार्केटिंग मैसेज और यू कैन से दिस इज योर ऑफर, जिसमें आपकी टारगेट ऑडियंस का नाम इट कुड बी जैसे कि हेल्पिंग वर्किंग प्रोफेशनल, देन उनकी प्रॉब्लम क्या आती है, हेल्पिंग वर्किंग प्रोफेशनल टू अचीव हाई पेइंग जॉब्स इन 90 days विदाउट क्या बोल सकते हैं, विदाउट अप्लाइंग इन सो मेनी कंपनीज, विदाउट गेटिंग ओवरवेल्म्ड। इस तरीके से आपको अपना मार्केटिंग मैसेज और एन इररेजिस्टिबल ऑफर बनानी है। सो अगर आपको कुछ डाउट है कि इस इररेजिस्टिबल ऑफर को कैसे बनाया जाता है, तो प्लीज आप मुझसे एक बार पूछ सकते हैं, बिकॉज ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इस पे आपको बड़ा दिमाग लगने वाला है। तो दिमाग लगाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। सबसे पहले नीश, उसकी प्रॉब्लम, एक यूनिक सोल्यूशन। मेरी नीश क्या है, कोचेस एंड कंसल्टेंट, उनकी प्रॉब्लम क्या है, उनके पास क्लाइंट्स नहीं आते, वो बिजनेस नहीं जनरेट कर पा रहे। यूनिक सोल्यूशन मैंने क्या दिया, हम लोग फ्री सेल्स फनल दे रहे हैं, और आई मीन आपको लाइक 90 डेज के अंदर 7 फिगर बिजनेस नहीं हो सकता, तो ये यूनिक सॉल्यूशन है, बहुत ही कम लोग दे पाते हैं। बोल्ड प्रॉमिस क्या आ गया, बोल्ड प्रॉमिस ये भी आ गया कि हम ये आप 90 डेज में 7 फिगर बिजनेस बिल्ड कर पाएंगे बिल्कुल स्क्रैच से। इसके साथ ही एक गारंटी आ गई कि 100% गारंटीड आप करोगे करोगे। इसके साथ ही अगर नहीं कर पाए, अगर रिजल्ट नहीं जनरेट कर पाए, तो हम आपका पैसा रिफंड कर देंगे या फिर हम आपके लिए फ्री में काम करेंगे। तो ऑब्वियसली प्रोसेस फॉलो करोगे तो आपको रिजल्ट आएंगे। प्रोसेस नहीं फॉलो करते तो हम बोल सकते हैं कि भाई आपने प्रोसेस फॉलो नहीं किया, तो इट्स योर मिस्टेक। सो दिस इज द पार्ट। सो गाइस, अब आप लोगों ने ऐसे करना है, आप लोगों के पास सबके पास फेसबुक ग्रुप है, इंटरनेट मोगल्स ऑफ द वर्ल्ड वाला। उस ग्रुप में आपने ये चैलेंज के लिए आपने अपना ऑफर बनाना है, और डिटेल में ऑफर, सिर्फ एक 1 लाइन अगर आप ऑफर बनाएंगे तो वो चैलेंज एक्सेप्ट नहीं है। डिटेल में पूरा ऑफर बना के यू हैव टू पोस्ट इट ओवर देयर। Okay, is that clear to everybody? Okay, and you have 48 hours, you have to finish it in 48 hours, because ये मंडे तक चले जाता है तो फिर हम टाइम पे इसको देख नहीं पाते, चेक नहीं कर पाते। तो ट्यूसडे को जब नेक्स्ट क्लास होगी, उससे पहले आपने नहीं डालना। बहुत सारे लोग मेरे को क्लास से पहले 10 मिनट पहले अगर आप ईमेल करेंगे या एक दिन पहले करेंगे, वो नहीं होगा। यू हैव टू सेंड इट टू अस इन द नेक्स्ट 42 आवर्स। और बेस्ट पार्ट ये अभी आपने सीखा है तो जल्दी जल्दी हो जाएगा। Yeah. डन। विवेक, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। बहुत Thank अच्छा you so लगा much, आपको thank फिर you से so मिलके। much. बहुत अच्छा लगा आप सभी से मिलके, मुझे भी बहुत धन्यवाद आपका। Awesome. Take care, Vivek. All the best. See you soon. Bye for now. Thank you so much. Thank you so much. Bye everyone.